Dear students, we discussed about the amorphous solids, lattice and bases in the lecture 2. Lecture 2 link is given in the description of this part. In this lecture, we will discuss about the unit cell. A crystalline solid is a material whose constituents such as atoms, molecules or ions are arranged in a highly ordered microscopic structure, forming a crystal. Lattice that extends in all directions are usually identifiable by their geometrical shape consisting of flat faces with specific characteristic orientations. एक क्रिस्टल एक ऐसा सॉलिड मटेरियल है जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हाईली ऑर्डर्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होते हैं. देयरफॉर दे कैन बी स्टैक्ड इन सीक्वेंस इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स. Crystal structure is the geometry of arrangement of atoms and molecules in the unit cell. Array of atoms which have long range order. क्रिस्टल में एटम्स की एरे लॉन्ग रेंज ऑर्डर में स्टैक्ड होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस एंड दे हैव हाईली रेगुलर पैटर्न एंड ड्यू टू दिस long range order regularity of position, crystals permit the designation of elementary building blocks, and that building blocks are known as the unit cells. If the unit cells are repeated in all directions, then entire crystal can be constructed. So, now the definition of unit cell. We can define unit cell, the smallest group of particles with a definite geometrical pattern repeating itself identically in all direction of crystal lattice forming complete crystal. Students, यहाँ आपको तीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बेसिक यूनिट सेल के. This is simple cubic unit cell, this is face centered cubic unit cell and body centered cubic unit cell. In the simple cubic unit cell, we have the 8 atoms at the corners only. Face centered cubic unit cell में 8 atoms आपको corners पर दिखाई दे रहे हैं and there are 6 more atoms inside the center of every face. And in the body centered cubic structure, we have an atom inside the body of this cube and 8 atoms at the corners. This diagram indicates the atomic arrangement in the simple cubic unit cell. What is the atomic arrangement here? यहाँ आपको फर्स्ट लेयर में 4 एटम दिखाई दे रहे हैं टचिंग देयर सरफेसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड इन्हीं के पैरेलल 4 एटम आपको सेकंड लेयर में दिखाई दे रहे हैं एंड ये एक यूनिट सेल बना रहे हैं. यही यूनिट सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए. इसी एक यूनिट सेल को रिपीट कर करके ऑल डायरेक्शंस में हम एक सिंपल क्यूबिक होल क्रिस्टल गेट कर सकते हैं. एंड इन दिस द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज डिफाइंड by edges, and here we can see the contribution of the atoms inside a single unit cell. If you see this structure carefully, then you can see students यहाँ पर 1/8 पार्ट एक एटम का एक यूनिट सेल में आपको दिखाई देगा बिकॉज अगर हम इस यूनिट सेल से और यूनिट सेल कंबाइन करते हैं इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड अलोंग जेड डायरेक्शन, देन वी कैन कंबाइन 8 यूनिट सेल्स विद दिस सिंपल यूनिट सेल. एक सिंगल यूनिट सेल से हम 8 यूनिट सेल को कंबाइन कर सकते हैं. तो इस तरह से एक कॉर्नर एटम जो है वो 8 यूनिट सेल में शेयर हो जाएगा. सिर्फ एक 1/8 पार्ट हमें एक एटम का कॉर्नर पर एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देगा. तो इस प्रकार से अगर हम 8 एटम के 1/8 पार्ट को अगर कंबाइन करते हैं, वी गेट ओनली ए सिंगल एटम इनसाइड ए पर्टिकुलर यूनिट सेल. एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में हमें सिर्फ एक एटम का कंट्रीब्यूशन एज ए होल दिखाई देगा.
In face-centered cubic unit cell, the atomic arrangement is looking like this. This will be described in the next slide by three-dimensional diagram which I made for you, students. And this is the face-centered cubic structure. In this, also you can see the corner atoms have their contribution as 1/8 part in this single unit cell, and every face atom will be combined or coordinating in the 2 unit cell, क्योंकि एक वॉल पर एक फेस पर ये एटम लाई करता है और एक फेस एक दूसरे फेस से जुड़ जाता है जब एक स्टैकिंग सीक्वेंस दिया जाता है एटम्स को कंप्लीट क्रिस्टल बनाने के लिए। तो इस प्रकार एक फेस पर जो एक एटम होता है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग इन द 2 यूनिट सेल्स, एक इधर और एक इससे नेक्स्ट यूनिट सेल में। सो एज ए होल फेस सेंटर पर आपके पास 6 एटम्स हैं, हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 है एक यूनिट सेल में, तो आपके पास 3 एटम्स का कंट्रीब्यूशन टोटली आपको फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में मिलता है। It means a total of 4 atoms contribution we get in a face-centered cubic unit cell. Now in the body-centered cubic unit cell, this is the atomic arrangement. यहाँ आप देख सकते हैं 4 atoms आपको फर्स्ट लेयर में दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो void बनती है उस void पर central atom लगा हुआ है, and in the third layer we have the 4 atoms parallel to the first layer and above this central atom. तो this is the atomic arrangement in the body centered cubic unit cell. यहाँ आप contribution चेक कर सकते हैं, जो एक कॉर्नर एटम है प्लस में एक आपके पास बॉडी सेंटर्ड एटम है, तो एज ए होल हमें 2 एटम्स का कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मिलता है। The geometry of the unit cell is defined as a parallel pipe providing 6 lattice parameters taken as the length of the cell edges ABC and the angles between them alpha, beta, gamma. The positions of atoms inside the unit cell are described by the fractional coordinates xi, yj, zk. Here students, एक पैरेललोपाइप्ड एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसको 6 पैरेललोग्राम्स और एक ऐसी सॉलिड बॉडी होती है जिसका हर एक फेस एक पैरेललोग्राम होता है, उसको हम पैरेलल पाइप्ड बोलते हैं। यहाँ लैटिस पैरामीटर्स वो होते हैं जो लेंथ सेल एजिस की लेंथ बताते हैं, मीन्स ओरिजिन एटम से लेकर अगर हम फर्स्ट एटम तक जाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस वी हैव द लेंथ ऑफ दैट एक्सिस एज 1 into a. For the first atom we use the integer as 1 and a is the length along the x axis. Similarly b is the length along the y axis and c is the length along the z axis. और एंगल अल्फा बीटा गामा आर द इंटरफेशियल एंगल्स बिटवीन 2 coinciding faces of a crystal. Also, we can define these positions by the fractional coordinates as xi, yj and zk. ये आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं। ये है यूनिट सेल। यूनिट सेल एक सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में मैंने आपको यूनिट सेल शो किया है यहाँ पर। इस यूनिट सेल में आप अगर ज्योमेट्री देखना चाहते हो देन ABC आर द लैटिस पैरामीटर्स विच आर द सेल एजेस और द लेंथ ऑफ द एक्सिस। देखिए दिस इज द ओरिजिन एटम। ओरिजिन एटम से अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं फर्स्ट एटम तक देन सेल लेंथ हो गई आपके पास 1 into a. 1 is the integer for the first atom distance and a is the direction. The 1 into a is the translational vector or the lattice parameter along the x axis. Similarly 1 into b for the first atom along y axis and 1 into c for the first atom along the z axis. So A, B, C are known as the edges, cell edges. Cell के edge हैं ये and they are also tell about the length from origin to the first atom. If we go to the second atom, then the length will be 2a. Similarly, if we go to the second atom in the y-axis, then the length will be the 2b. Similarly, along the z-axis, up to the second atom, the length will be 2c. Now alpha, beta, gamma. Alpha is the angle here shown in between the y and z axis. Beta is the angle shown in between x and z axis. And gamma is the angle shown in between y and x axis. So alpha, beta, gamma are the interfacial angles or interstitial angles. That is the angle between the coinciding faces of the cube.
So स्टूडेंट्स, ये आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एफसीसी के लिए। एफसीसी की फर्स्ट लेयर को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ हम। आप यहाँ देख सकते हैं हर एक एटम 6 अदर एटम से घिरा हुआ है। इसके एक सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 6 अदर एटम्स दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट लेयर में हर एक एटम आपको 6 एटम के बीच में घिरा हुआ दिखाई देगा और यही इसी सीक्वेंस में स्टैक्ड होंगे along all the direction in long range order. यहाँ स्टूडेंट्स आपको सेकंड लेयर में बता रही हूँ विद रेड कलर्ड एटम्स। यहाँ ये आप यहाँ देखिए, पहले इस फिगर में आपको 3 एटम्स के बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड्स दिखाई देगी। आप 3 एटम्स कॉपी में ड्रॉ करके देखिए, उनके बीच में आपको एक ट्रायंगुलर वॉइड्स दिखाई देगी। उस ट्रायंगुलर वॉइड पर सेकंड लेयर में एटम्स जो है जुड़ा होता है एंड दिस इज रिपीटेड इन ए रेगुलर मैनर। हर ट्रायंगुलर वॉइड पर एक एटम सेकंड लेयर में जुड़ता है। तो हमने फर्स्ट लेयर में देखा हमारे पास 6 एटम थे। उन 6 एटम पर 3 ट्रायंगुलर वॉइड्स के पोजीशन लेकर रेड एटम्स 3 रेड एटम्स प्लेस हैं सेकंड लेयर में। मीन्स 6 के ऊपर आपको 3 एटम्स रेड मिलेंगे सेकंड लेयर में। अगर इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, बोथ साइड मैंने आपको रोटेट करके दिखाया है। आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लेयर यहाँ बन रही हैं। मीन्स दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 6 एंड 3 एटम्स। एक सिंगल यूनिट सेल में एटॉमिक अरेंजमेंट जो एफसीसी के लिए बना होता है वो ये है 3, 6 एंड 3। 3 एटम्स इन द फर्स्ट लेयर, 6 एटम्स इन द सेकंड लेयर एंड 3 इन द थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में जो 6 एटम्स हैं उसके सेंटर में भी एक एटम है। मीन्स ए टोटल आपके पास बनता है 3 एटम्स एंड देन 7 एटम्स इन द मिडल एंड देन 3 एटम्स इन द अपर मोस्ट लेयर। तो दिस इज द 3 डायमेंशनल डायग्राम टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक अरेंजमेंट इन द एफसीसी। मैंने यहाँ आपको एक और लेयर स्टैक्ड करके दिखाई है फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। अगेन जो रेड एटम्स, यहाँ देखिए, जो रेड एटम्स की ट्रायंगुलर वॉइड बनती है उसमें नेक्स्ट लेयर में एक सेंट्रल एटम येलो उसकी ट्रायंगुलर वॉइड पर आएगा यहाँ, और इसी तरह से ये सीक्वेंस रिपीट होता चला जाएगा। अगर आप येलो कलर को ध्यान से देखें तो ये जो लेयर फॉर्म हुई है इसमें एक सेंट्रल एटम आपको दिखाई देगा और इसके चारों तरफ 6 अदर एटम्स दिखाई देंगे। तो आपको इस डायग्राम में ये पता लग रहा है कि जैसे आपको पहले मैंने ब्लू लेयर दिखाई, उसमें एक सेंटर एटम है, उसके चारों तरफ 6 एटम हैं। उन 6 एटम्स के बीच में वॉइड्स बनती हैं, उसमें से 3 ट्रायंगुलर वॉइड्स में 3 एटम्स रेड कलर के स्टैक्ड होंगे एंड उसके बाद अगर आप रेड लेयर कंप्लीट होने के बाद रेड लेयर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी आपको वही स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि एक सेंटर एटम है और उसके चारों तरफ 6 एटम्स हैं। उसके बाद आप थर्ड लेयर आपने कैसे बनाई है कि एक रेड एटम की ट्रायंगुलर वॉइड पर एक येलो एटम आया है, इसी तरह हर एक रेड एटम की ट्रायंगुलर वॉइड पर एक येलो एटम आएगा इन द नेक्स्ट लेयर। बट अगर आप येलो एटम्स की कंप्लीट लेयर को देखेंगे तो आपको वही सेम सीन दिखाई देगा कि एक एटम सेंटर पर है और उसके चारों तरफ 6 एटम्स स्टैक्ड होंगे। तो एफसीसी पैटर्न इस तरह से फॉलो होता चला जाता है, इस तरह से अपने आप को बिल्ड करता है। किस तरह से? फर्स्ट लेयर, उसमें हमारे पास है एक सेंट्रल एटम, उसके चारों तरफ 6 एटम। सेकंड लेयर में हम एक ट्रायंगुलर वॉइड पर एटम को रखते हैं, पर जब सेकंड लेयर कंप्लीट होती है तो वही चीज हमें दिखाई देती है, एक सेंटर एटम और उसके चारों तरफ 6 एटम। बट एक सिंगल यूनिट सेल एफसीसी का किस प्रकार बना हुआ है? 3, 6, 3 के कॉम्बिनेशन में 3 एटम्स इन द फर्स्ट लेयर, 6 एटम्स इन द सेकंड लेयर, उसके बीच में एक और एटम है सेंट्रल एटम एंड 3 एटम्स अबव दैट लेयर्स। अगर आप एक क्यूब में एफसीसी को देखते हैं तो आपको ये मालूम है कि 8 एटम्स कॉर्नर पर हैं,
6 फेजेस में हैं, तो 14 एटम्स आपको दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर आप एटॉमिक अरेंजमेंट के सिंगल यूनिट सेल को काउंट करते हैं, 3 एटम्स आपके पास फर्स्ट लेयर में है, 7 एटम टोटल आपके पास सेकंड लेयर में है एंड 3 एटम्स आपके पास थर्ड लेयर में है। बट एक स्टैकिंग सीक्वेंस जब दिखाई देता है तो हर एक लेयर में आपको दिखाई देगा कि एक एटम सेंटर पर है और उसके चारों तरफ 6 एटम्स जुड़े हुए हैं। तो इस डायग्राम से आप एफसीसी को अच्छी से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय दिस 3 डायमेंशन डायग्राम। थैंक यू।